My dear students, let us discuss a two-question set from ZAT 2023 decision making section. Let us read through the statements. The CEO of the Jamshedpur tea factory was in a quandary. Quandary is basically dilemma. Dilemma mein hai, confusion mein hai. So was in a quandary over employees skipping work. So employees are skipping work, and that is what is keeping him concerned in a dilemma. It was becoming increasingly difficult for him to identify employees who faked illness to skip work. So basically, there are some employees who are faking illness, and that is what is concerning him. And it is very difficult to exactly identify who is faking illness, who is not. The work for the employees was complex and intricate, and they had to report to 8 supervisors. So generally, this is not the case. Definitely, if they are reporting to 8 supervisors, their work is complex and intricate. Faking illness made it difficult for JTF, yani Jamshedpur Tea Factory, to judiciously decide on promotion and training of employees. So faking illness is a real concern that they need to address. And due to this, their training and promotion is getting affected because they are not able to judicially decide on both. An employee could only be promoted, so there are conditions, could only be promoted on the completion of a multi-skilled training program. So that is the precondition. Multi-skilled training program is a precondition to promotion. Further, to be nominated for the training program, an employee must be recommended by a minimum of 6 supervisors. So when 6 supervisors, at least 6 of them recommend, then he gets included or inducted in the training program. That is the condition. And JTF wanted to promote only sincere and deserving employees, and that is the real issue कि faking illness की वजह से they are into that trouble, and that is becoming more and more difficult. So that is what the CEO wants to resolve. The CEO was thinking of changing the policy regarding leave, training and promotion. So leave, training and promotion are connected, because if faking illness for leave, then definitely an employee is less sincere and deserving, isn't it so? Because he is not very honest about his leaves and everything. So definitely this is getting affected. So leave, training and policy, promotion policy has to be changed by CEO. Now the question is, first question hai, which of the following will be most efficient course of action? Efficient is that course of action which is minimum wastage. Efficiency यानी कि minimum wastage होना चाहिए. Most utilization of resources, best utilization of resources. So efficient course of action चाहिए हमको for JTF, and yet that also has to be fair to the employees. So employees के लिए fair होना चाहिए. Which course of action should be the right course of action? Efficient as well as fair to the employees. Option A is saying let the CEO office decide on the leave as well as promotions. So we are burdening CEO office with the 2 decisions. One is leave as well as promotion. Both are to be decided by CEO office. That is a problem. Is it most efficient? Think about it. Because earlier what was happening, that for the training recommendation was coming from supervisors. Okay? Leave was an issue. Faking illness, this is an issue, isn't it so? And that is what is concerning CEO. तो अगर CEO ऑफिस दोनों ही डिसाइड करेगा, लीव भी और प्रमोशन भी, दिस विल बी ओवरबर्डनिंग, और ओवरबर्डनिंग होगा तो फिर डेफिनेटली इट वोंट बी एफिशिएंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. ओवरबर्डनिंग होगा और सेंट्रलाइजेशन होगा. दिस इज नॉट गुड फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज अगर एक ही अथॉरिटी सब कुछ डिसाइड करेगी तो वो कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाएगी एफिशिएंटली, कुछ भी एफिशिएंटली डिसाइड नहीं कर पाएगी, isn't it so? So that is the problem. Option A should not be the solution. It won't be efficient for sure. And also not fair to the employees, because ultimately किसी भी एम्प्लॉई का जो इमीडिएट मैनेजर होगा या फिर सुपरवाइजर्स होंगे, दे विल बी बेटर at deciding a few things. They know exactly what the employee's performance is, how is he performing, how is he excellent in few things and in what things he is lacking. So definitely in some cases we need the supervisors recommendation as well, जो कि यहाँ पे given है already कि training program के लिए 6 supervisor recommending. So that is problematic in many cases, many ways. Overburdening हो रहा है, centralization हो रहा है, too much centralization, too much work to single authority, or also not fair to the employee. Second, let supervisors decide on the leave of the employee. Second के साथ problem क्या है? ये leave के बारे में बात कर रहा है, but this is not talking about the promotion. Both are the concerns. Leave भी concern है और promotion भी concern है. This is talking about the leave but not the concern. And also this is talking that supervisors decide on the leave of an employee. Okay. And problem is there are total 8 supervisors. Total 8 supervisors है.
So which supervisor? That is not being mentioned. Which supervisor will decide? If all the 8 will be deciding, is it efficient? It will be so much wastage. जो चीज़ एक सुपरवाइजर डिसाइड कर सकता है उसके लिए हम 8 लोगों का रिसोर्स यूज करेंगे. सो दिस इज टू मच वेस्टेज. Not very clear either. So not very efficient for sure. Option B should not be the solution. Option C, let the CEO office decide on the promotion, but each supervisor will decide on the leave. Now the problem is each supervisor will decide on the leave. There are total 8 supervisors and all of them will decide on the leave. Now for one leave, one sick leave or whatever leave there be, there will be total 8 supervisors and each of them will have their own decision. फिर एंड में डिसीजन पे कैसे पहुंचेंगे? अगर 4 ने कहा मिलनी चाहिए, 4 ने कहा नहीं मिलनी चाहिए, तो क्या होगा? प्रैक्टिकलिटी इज देयर, इज दैट इट्स ऑल्सो नॉट एफिशिएंट बिकॉज देयर इज टू मच वेस्टेज. एक के डिसीजन के लिए 8 लोग डिसाइड कर रहे हैं, टू मच वेस्टेज, इजंट इट सो? एंड देयर इज नो एज सच, आई मीन सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व होगा. हर एक सुपरवाइजर डिसाइड करेगा, देयर विल बी अ लॉट ऑफ सब्जेक्टिविटी ऑल्सो. सो वेरी प्रॉब्लमेटिक कि लीव को सुपरवाइजर डिसाइड करें. एंड ऑल्सो सीईओ ऑफिस विल डिसाइड ऑन प्रमोशन. सीईओ ऑफिस को एम्प्लॉइज की एग्जैक्ट परफॉर्मेंस के बारे में थोड़ी पता होगा. दैट इज व्हाट इज नो हाउ ऑफ अ सुपरवाइजर. और सुपरवाइजर उस पर डिसाइड नहीं कर रहा है, इंस्टेड वो लीव पे डिसाइड कर रहा है. दैट टू 8 सुपरवाइजर डिसाइडिंग ऑन लीव. सो बोथ वेज प्रॉब्लम है यहाँ पे. सीईओ ऑफिस प्रमोशन पे डिसाइड कर रहा है जो कि उसको करना नहीं चाहिए, उसको लीव पे डिसाइड इसलिए करना चाहिए बिकॉज लीव के लिए एक सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी होगा, तो दैट विल बी मच बेटर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड सीईओ इज ऑल्सो कंसर्न्ड बिकॉज ऑफ दैट ओनली. तो डेफिनेटली अगर लीव के लिए एक सेंट्रलाइजेशन पॉलिसी हो, दैट विल बी मच बेटर कि लीव सीईओ ऑफिस डिसाइड करे. और प्रमोशन के लिए देयर शुड बी रिकमेंडेशन विच इज इन द नेक्स्ट ऑप्शन. रिकमेंडेशन ऑब्वियसली डिसाइड तो नहीं करेगा कोई भी सुपरवाइजर, बट रिकमेंडेशन बाय सुपरवाइजर्स कुड बी अ बेटर सॉल्यूशन. सो ऑप्शन सी इज प्रॉब्लमेटिक ऑन बोथ केसेस. लीव पे भी प्रॉब्लमेटिक है और प्रमोशन पे भी प्रॉब्लमेटिक. ऑप्शन डी कह रहा है लेट द सीईओ ऑफिस डिसाइड ऑन द लीव एंड सुपरवाइजर्स डिसाइड recommend promotions, not decide, recommend promotions. So definitely this is a good option. This is what we discussed कि दोनों जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो स्वैप हो जाए. लीव पे सीईओ ऑफिस डिसाइड करेगा तो लीव पे देयर विल बी अ सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी. सेम रूल्स होंगे, सबके लिए एप्लीकेबल होंगे, तो फेयर फॉर एम्प्लॉइज. लीव पे देयर विल बी अ सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी, सो दे विल नो एंड फेयर होगा एम्प्लॉइज के लिए. सब्जेक्टिविटी नहीं रहेगी जो कि उस केस में होगी जबकि सुपरवाइजर डिसाइड करेंगे. सो डेफिनेटली दिस इज बेटर फॉर लीव एंड सुपरवाइजर्स विल रिकमेंड प्रमोशंस. ऑब्वियसली दे विल नॉट बी डूइंग प्रमोशंस बट दे विल बी रिकमेंडिंग. दे नो एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस कैसा है कैसा नहीं है, सो दे कैन रिकमेंड एंड दैट इज बेटर सॉल्यूशन. बोथ प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड. तो ऑप्शन डी इज डेफिनेटली ग्रेटर देन ऑप्शन सी. ऑप्शन डी शुड बी द सॉल्यूशन. ऑप्शन ई कह रहा है लेट द स्टेटस क्यू कंटिन्यू. अब स्टेटस क्यू कंटिन्यू करना है, जैसा हो रहा है वैसा होने दो. अब जैसा हो रहा है वैसा होने दो तो फिर वो सॉल्यूशन थोड़ी है. ऑब्वियसली दोनों ही केस में प्रॉब्लम आ रहा है. ऑलरेडी एग्जिस्टिंग केस में लीव में ही प्रॉब्लम है और प्रमोशन में ही प्रॉब्लम है, तो जैसा हो रहा है वैसा तो नहीं होने देना है. तो डेफिनेटली ऑप्शन डी विल बी अवर आंसर. क्लियर है? ऑप्शन डी शुड बी द आंसर इन दिस केस. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग, स्टेटमेंट इनिशियल वाला पूरा सेम है. विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज विल बी मोस्ट प्रोन टू एरर वाइल सेलेक्टिंग डिजर्विंग एंड सिंसियर एम्प्लॉइज. नॉट दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन. क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज विल बी मोस्ट प्रोन टू एरर while selecting deserving and sincere employees. So we have to select deserving and sincere employees. For what? For what as such? How can we select deserving and sincere employees? तो एक्चुअल में अगर रेफरेंस देखें हम तो ऑलरेडी हमारा लास्ट लाइन जो कह रही है JTF wanted to promote only sincere and deserving employees. So that is what probably this is talking about. Question is talking about कि JTF want to select deserving and sincere employees for promotion. Maybe for that they want the policy and we need to identify that policy which is most prone to error. यानी कि most problematic policy जो होगी that is our answer. That will be our answer. हमें decide क्या करना है? 2 चीज़ें हैं policy में, because leave is also the concern and promotion is also the concern. तो leave और promotion दोनों के बारे में decide करना है और हमें ऐसी policy identify करनी है जो दोनों में problematic हो. Most prone to error वही होगी जो leave में भी सही नहीं हो और promotion पे भी सही से work ना करे. सो प्रोबेबली हमारा आंसर, एक तो चीज़ ये है कि अगर हम अपना इनिशियल मोस्ट एफिशिएंट कोर्स ऑफ एक्शन देखें तो क्या था? दैट द सीईओ ऑफिस शुड डिसाइड ऑन द लीव एंड सुपरवाइजर्स विल रिकमेंड प्रमोशंस. अगर हम इसको स्वैप कर दें, इफ वी स्वैप दीज टू, यानी कि सीईओ ऑफिस डिसाइड करे प्रमोशन पे और सुपरवाइजर डिसाइड करे लीव पे, तो दैट इज अ प्रॉब्लमेटिक केस. अगर वो गिवन है, बट उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक केसेस हो सकते हैं. सो लेट अस गो थ्रू द ऑप्शंस. ओके, ठीक है.
और दिस इज अ स्लाइटली ट्रिकी बिकॉज क्योंकि लैंग्वेज है जो क्वेश्चन का, उसमें कंफ्यूज हो सकते हो आप, ठीक है, कि मोस्ट प्रोन टू एरर पूछा है, सबसे प्रॉब्लमेटिक पॉलिसी पूछा है, कौन सा होगा? ऑप्शन ए कह रहा है आउटसोर्स ऑल लीव डिसीजंस टू अ डॉक्टर हुज जजमेंट विल बी फाइनल। आउटसोर्स ऑल लीव डिसीजंस टू अ डॉक्टर हुज जजमेंट विल बी फाइनल, फाइन। सो एज फार एज sick leaves are concerned, so doctors have better know how, they have expertise to identify who is actually sick and who is faking the sickness. So definitely एक जो concern है हमारा faking illness, that is the main concern for skipping work. So that concern will be addressed, that faked illness concern will be addressed by doctors, isn't it so? तो ये वाला कंसर्न तो एड्रेस हो जाएगा। बाकी केसेस में अगर कोई लीव ले रहा होगा तो वो कंसर्न हमारा डॉक्टर से एड्रेस नहीं होगा, तो वहां पे एरर कुड बी देयर बिकॉज डॉक्टर्स आर नॉट एक्सपर्ट इन अदर थिंग्स, दे आर एक्सपर्ट इन मेडिकल फील्ड. So definitely when someone is faking illness, doctors can definitely decide and their judgment should be final, but in other cases there will be errors. बाकी केसेस में एरर होगा, तो डेफिनेटली जो अदर लीव्स होंगी वहां पे प्रॉब्लम आएगा, अदर लीव्स में प्रॉब्लम आएगा. सो दे आर नॉट एक्सपर्ट्स. सेकेंडली, प्रमोशन के बारे में कोई बात नहीं हो रहा है यहाँ पे, प्रमोशन के बारे में कोई बात नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज समझना जरूरी है. देखो क्वेश्चन क्या हमसे पूछ रहा है, मोस्ट प्रोन टू एरर हमें आंसर सेलेक्ट करना है. तो अगर प्रमोशन के बारे में कोई बात नहीं हो रहा है तो एरर भी कैसे होगा? ठीक है, तो दिस ऑप्शन इज इनकम्प्लीट इन दैट सेंस, इनकम्प्लीट इन दैट सेंस. तो प्रमोशन के बारे में अगर कुछ पॉजिटिव नहीं होगा तो कुछ निगेटिव भी नहीं हो रहा है, कुछ निगेटिव भी नहीं हो रहा है. तो दिस ऑप्शन इज प्रॉब्लमेटिक इन व्हाट सेंस? इन अदर लीव सेंस, कि मेडिकल लीव्स के अलावा जो बाकी लीव्स होंगी वहां पे प्रॉब्लम आएगा, बट मेडिकल लीव्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. और प्रमोशन के बारे में दिस इज नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग. तो प्रमोशन में कोई एरर का तो गुंजाइश नहीं है, कुछ सही होगा नहीं होगा बट एरर भी नहीं होगा बिकॉज दैट इज नॉट मेंशन्ड हियर. तो डेफिनेटली लीव के बारे में बात कर रहा है. ऑप्शन बी के बारे में बात करते हैं. ऑप्शन बी इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट ओनली लीव्स. आउटसोर्स ऑल लीव डिसीजंस टू अ लॉयर हुज जजमेंट विल बी फाइनल. सो लॉयर माइट नॉट बी फिट फॉर मेडिकल लीव्स. मेडिकल लीव्स में वो एग्जैक्टली आइडेंटिफाई तो नहीं कर पाएगा, दो lawyers do deal with such cases, so they have some know-how, so not very bad option but not very good either, because doctor is better expert on medical leaves. So medical leaves mein doctor will be greater than a lawyer for sure. Maybe on other leaves option, on other leaves he will be a better expert than a doctor. So other leaves ke case mein definitely lawyer will be a better option than a doctor, but still he is only talking about, दिस ऑप्शन इज ओनली टॉकिंग अबाउट लीव्स ओनली. प्रमोशन के बारे में कोई बात नहीं हो रहा है, और क्योंकि बात नहीं हो रहा है तो प्रमोशन में एरर की भी बात नहीं हो रही है. ठीक है, द ओनली थिंग दैट वी आर कंसर्न्ड इन दीज टू ऑप्शंस, ऑप्शंस ए एंड बी आर लीव्स ओनली बट नॉट प्रमोशंस. तो प्रमोशंस पे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, कुछ पॉजिटिव भी नहीं है. सो ए और बी दीज आर ऑप्शंस विच आर प्रोन टू एरर. ए प्रोन टू एरर अदर लीव्स एंड बी प्रोन टू एरर ऑन मेडिकल लीव्स मे बी, बट स्टिल डिसेंट है, डिसेंट है. आई मीन एरर विल बी देयर बट प्रमोशंस पे कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है. ऑप्शन सी डी ई पे चेक करते हैं. सी कह रहा है लेट द सीईओ ऑफिस डिसाइड ऑन लीव बट सुपरवाइजर्स विल रिकमेंड द प्रमोशन. और यही तो हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया था अपने क्वेश्चन के आंसर में, सी ऑफिस डिसाइड ऑन लीव बट सुपरवाइजर विल रिकमेंड प्रमोशन. डेफिनेटली दिस वाज द मोस्ट एफिशिएंट सॉल्यूशन. और अगर मोस्ट एफिशिएंट था तो लेस प्रोन टू एरर था, इसमें एरर की सबसे कम गुंजाइश है. तो ऑप्शन सी तो डेफिनेटली हमारा आंसर नहीं होगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमें मोस्ट प्रोन टू एरर वाला आंसर चाहिए. ऑप्शन डी कह रहा है लेट द सीईओ ऑफिस डिसाइड ऑन द लीव एज वेल एज प्रमोशन. सो अगर सीईओ ऑफिस विल डिसाइड ऑन लीव एज वेल एज प्रमोशन तो लीव पे तो सही काम करेगा बट प्रमोशन पे प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम होगा प्रमोशन पे. प्रोन टू एरर है, प्रोन टू एरर है. सिंस ये लीव पे सही काम कर रहा है और 100% सही काम कर रहा है, लीव पे 100% सही काम कर रहा है, तो डेफिनेटली दिस इज अ बेटर ऑप्शन, दिस इज अ गुड ऑप्शन बट नॉट द आंसर ऑप्शन, बिकॉज आंसर में हमको चाहिए मोस्ट प्रोन टू एरर. तो ये आंसर तो पक्का नहीं है, आंसर तो पक्का नहीं है बिकॉज इससे खराब ऑप्शन हमने ऑलरेडी देखे हैं. ठीक है, सो दिस इज डेफिनेटली नॉट द आंसर बिकॉज ऑप्शन डी इज डेफिनेटली टेकिंग लीव वाला पार्ट जो कि मोस्ट एफिशिएंट सॉल्यूशन था हमारा, और प्रमोशन वाले पार्ट में गड़बड़ है बिकॉज प्रमोशन वाले में उल्टा रिजल्ट आएगा. बट दिस इज, थिंक अबाउट इट कि डी हमारा ए और बी से बेटर होगा कि नहीं होगा. ज्यादा एरर कहां पे होगा, डी में या ए और बी में? डी में वी आर टॉकिंग अबाउट प्रमोशंस, ए और बी में प्रमोशन के बारे में कोई बात नहीं हो रहा है. तो प्रमोशन में देयर विल बी लीव बट लीव में दिस इज वेरी गुड ऑप्शन. सो डेफिनेटली डी और बी में डी इज बेटर ऑप्शन, इजंट इट सो? डी इज बेटर ऑप्शन बट आंसर की तरफ ए और बी ज्यादा क्लोज होंगे, यानी कि डी शुड नॉट बी द आंसर. ए और बी को भी हमें होल्ड पे रखना पड़ेगा. क्या ये बात समझ में आती है? बिकॉज डी लीव में परफेक्ट है, एक चीज में तो परफेक्ट है, ए और बी किसी भी चीज में ऐसा परफेक्ट नहीं है. एक तो आधी चीज की बात ही नहीं कर रहे प्रमोशन की, और भी डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं, लीव के बारे में बात कर रहे हैं. तो लीव में भी डॉक्टर इज गुड फॉर मेडिकल लीव्स, लॉयर सो एंड सो फॉर मेनी, फॉर ऑल काइंड ऑफ लीव्स.
ठीक है. ऑप्शन ई इज सेइंग लेट द सीईओ ऑफिस डिसाइड ऑन प्रमोशंस बट सुपरवाइजर्स विल डिसाइड ऑन द लीव. नाउ देयर आर 8 सुपरवाइजर्स. There will be issue कि which supervisor decide on leave. Also both are problematic. CEO ऑफिस को प्रमोशन पे डिसाइड करेगा तो एरर करेगा, और सुपरवाइजर डिसाइड करेंगे अगर लीव पे तो दे विल ऑल्सो बी प्रोन टू एरर. सो एरर ऑन बोथ साइड्स, प्रमोशन पे भी एरर होगा और लीव में भी एरर होगा, दोनों में एरर होगा. सो देयर इज मोर प्रोपेंसिटी, मोस्ट प्रोन टू एरर ऑप्शन इज ऑप्शन ई. एंड वाई इट इज मोस्ट प्रोन? बिकॉज यहाँ पे एरर का गुंजाइश ज्यादा है. दोनों केसेस में एरर करेगा, प्रमोशन में भी एरर करेगा, लीव में भी एरर करेगा. जबकि ए और बी के केस में ऐसा नहीं है. दे आर नॉट एट ऑल टॉकिंग अबाउट प्रमोशन, वो प्रमोशन के बारे में बात ही नहीं कर रहे. ठीक है, तो एरर का भी गुंजाइश कहाँ है? एज सच वी आर नॉट रियली सेलेक्टिंग डिजर्विंग एंड सिंसियर एम्प्लॉइज इन ऑप्शन ए एंड बी. वी आर ओनली टेकिंग अ लीव डिसीजन इन ऑप्शन ए एंड बी. ऑप्शन ए और बी में हम सिर्फ और सिर्फ एक लीव का डिसीजन ले रहे हैं. वी आर नॉट रियली सेलेक्टिंग डिजर्विंग एंड सिंसियर एम्प्लॉइज फॉर प्रमोशन, विच इज द मेन कंसर्न. सो अगर हम पूरा का पूरा वो डिसीजन ही नहीं ले रहे तो ए और बी में एरर का भी गुंजाइश कहाँ उतना आता है? सो डेफिनेटली ई इज मोर प्रॉब्लमेटिक देन ए एंड बी. सो ई शुड बी अवर आंसर, बिकॉज ई में दोनों में प्रॉब्लम होगा. सो ई शुड बी अवर आंसर इन दिस केस. दिस क्वेश्चन इज स्लाइटली ट्रिकी, स्लाइटली डिफिकल्ट, स्लाइटली नहीं बल्कि इनफैक्ट काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है. ठीक है, सो अगर सेशन पसंद आया है, अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आया है तो सेशन को लाइक करना है. अगर फिर भी डाउट रह जाता है तो यू कैन ऑलवेज कमेंट एंड आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट डाउट एज वेल. दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. बाय बाय, टेक केयर.